اس واقعے کے بعد اگلے دن ایک دن پہلے یونیورسٹی میں اس نے اپیا کو کافی پریشان کیا۔ جب اپیا نے اسے منہ توڑ جواب دیا کہ وہ جیسے گھٹیا انسان سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، تو اگلے دن اس نے اپیا کو اٹھوا لیا۔ اس کے فلیٹ پر پہنچنے کے کچھ دیر بعد اپیا نے موبائل پر مجھے کال کی اور روتے ہوئے سب کہہ سنایا۔ امی ابو کو بتانے پر پہلے تو انہیں یقین نہ آیا۔ ابو نے مجھے ڈانٹا کہ جب سب پتہ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ اسی وقت قریبی تھانے میں گئے، مگر وہاں تو الٹا حساب رستم کے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ کے سبب بجائے ابو کی فریاد سننے کے پولیس والے نے الٹا ابو کو بے عزت کر کے پولیس اسٹیشن سے نکال دیا۔ کہنے لگا تمہاری اپنی ہی بیٹی گھر سے بھاگی ہوگی، اور بھی نہ جانے کیا کیا الزام۔ ہم غریب کیا کر سکتے ہیں سوائے ان زمین کی خداؤں کے آگے اپنی عزت لٹانے کے۔ اور وہی ہوا۔ شام میں زنیرہ کو وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد چھوڑ گیا۔ فرح زاروں قطار ہو رہی تھی اور کم حال ابیشا کا بھی نہیں تھا۔ اس قدر انسانیت کی تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے انصاف دلا کر رہوں گی، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اسے حوصلہ دلاتے وہ عزم سے بولی، رہنے دے باجی، ایسے لوگوں کو اس دنیا میں کہاں سزائیں ملتی ہیں۔ فرح آنسو صاف کرتے ہوئے مایوسی سے بولی، اللہ کی پکڑ سے بڑے بڑے فرعون نہیں بچ سکے۔ یہ لوگ کیا چیز ہیں، بس تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جب بھی میں تمہیں کہوں۔ فرح سے وعدہ لے کر وہ اٹھی۔ وہ کچھ دن مسلسل وہاں گئی تاکہ زنیرہ خود اس سے سب شیئر کرے اور وہ اس کی ریکارڈنگ لے کر اپنے باس کو دے تاکہ کچھ پیش رفت ہو سکے، مگر زنیرہ نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ فرح سے وہ مسلسل رابطے میں تھی۔ پھر غازان والے واقعے کے بعد تو ابیشا کے لیے زنیرہ کو کنونس کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ ابیشا کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھ کر زنیرہ نے غصے سے بہن کو دیکھا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ زنیرہ نہیں تھی جو اس دن ابیشا نے اس کے گھر دیکھی تھی۔ زنیرہ پلیز، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ابیشا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل بٹھایا۔ ابیشا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ایسے درندوں کو انصاف نہیں ملتا۔ وہ بے چارگی سے اسے دیکھ کر بولی، ملے گا، ضرور ملے گا، تم بس مجھے سب بتاتی جاؤ۔ تم جانتی ہو رستم کے خلاف ایک اور کیس جلد ہی کھلنے والا ہے۔ اس کی بربادی کے دن قریب آنے والے ہیں۔ اور پھر ابیشا نے اسے غازان والا واقعہ کہہ سنایا۔ اف میرے خدا، کتنا گھٹیا انسان ہے یہ رستم۔ غازان بھائی کو کون نہیں جانتا، اتنے اچھے انسان ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اور غازان جیسے بے گناہوں کو انصاف ملے؟ پلیز زنیرہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم اگر اس کے خلاف گواہی دے دو گی تو مجھے اپنے سر کو اس پر واقعے پر ایکشن لینے کے لیے اور آسانی ہوگی۔ بہت سے بڑے بڑے وکیلوں کو اب میں جانتی ہوں، اور پھر آج کل جو میڈیا کی نظر میں آ جائے تو لوگ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتے۔ میں یہ سب میڈیا پر بہت جلد لاؤں گی۔ اس لڑکی کو بھی پہلے ڈھونڈنا ہے تاکہ تم دونوں کی گواہیاں اس رستم جیسے گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ وہ ایک ایک لفظ چھپا کر بولی، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ زنیرہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، اور پھر اسی طرح قطرہ قطرہ مل کر جب سمندر بنتا ہے تو اس کی موجوں سے بچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ابیشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ 6 ماہ بعد چھٹی ہونے میں 15 منٹ رہ گئے تھے، اور آج کا آرٹیکل اسے ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ کل صبح اخبار میں یہ لازمی چھپنا تھا۔ تقریباً سارا مکمل تھا۔ وہ ایک نظر پڑھ کر غلطیاں ٹھیک کر رہی تھی جب آفس بوائے دروازہ بجا کر اندر آیا۔ السلام علیکم میڈم، آپ سے رومان صاحب ملنے آئے ہیں۔ فوراً اندر بلاؤ۔ رومان کافی مرتبہ اس کے آفس آ چکا تھا۔ ان کی وجہ سے ابیشا کے باس سے بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ غازان کی وجہ سے اسے باس بہت اچھے سے جانتے تھے۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ وہ دروازہ بجا کر داخل ہوتے پچھلی بہت سی ملاقاتوں کی نسبت آج ابیشا کو بہت فریش لگا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آئیں جناب۔ خوشگوار انداز میں اسے جواب دیتے ہوئے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ کہتا وہ بیٹھ گیا۔
अबीशा ने जल्दी जल्दी सब पेपर्स समेटे। घर में सब कैसे हैं? उसने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। बस ठीक। रुमान के जवाब पर लम्हा भर इसके हाथ रुके। रुमान, आपने कभी आंटी को खुद से नहीं समझाया कि गजान ऐसे नहीं? रुमान की इस बात पर लहजा भर को इसकी जानिब देखकर नज़रें झुका गया। बहुत मर्तबा कोशिश की है मैंने भी और मुन्ना ने भी, मगर इन्हें तो जैसे एक चुप सी लग गई है। पता नहीं इनके दिल में क्या चाह रहा है, मैं समझने से कासर हूँ। आज फिर कोशिश करूँगा। घंटों गजान के कमरे में बैठकर रोती रहती हैं। ऐसे लगता है हम सब एक दूसरे से बहुत फासले पर आ गए हैं। डैडी हैं तो इन्हें दिन रात का कोई होश नहीं। लेट रातों को आना और सुबह होते ही निकल जाना। इनकी सेहत इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और वो भी किसी से कोई बात नहीं करते। ऐसे लगता है वैश्तों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। रुमान की हर बात पर जैसे अबीशा का दिल दुख से भर जाता था। किसी एक शख्स की ज़िंदगी में होने से हर चीज़ कितनी मुकम्मल लगती है, और जब वह चला जाता है तब मालूम होता है इसने हर रिश्ते को कैसे जोड़े रखा था। आपसे कुछ खास बात डिस्कस करनी थी। अगर फ्री हो गई हैं तो कहीं और चलें। रुमान की बात पर इसने सर इस बात में हिलाया। वो दोनों आगे पीछे चलते ऑफिस से बाहर आ चुके थे। अबीशा रुमान के साथ इसकी गाड़ी में मौजूद थी। थोड़ी देर बाद रुमान की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रुकी। गाड़ी से उतरकर वो दोनों अंदर की जानिब बढ़े। एक टेबल के सामने रुककर रुमान ने पहले अबीशा के लिए कुर्सी घसीटकर इससे बैठने का इशारा किया और फिर खुद इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ जी, आप बताएं। अबीशा ने इस्तफार किया। रुमान ने पैकेट में मौजूद एक सीवी इसकी जानिब बढ़ाई। अबीशा की नज़रें इस्तफामिया नज़रें इसकी जानिब उठी। इसमें फेयरवेल की वो तमाम तस्वीर और वीडियोस हैं पिछले कुछ महीनों से मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से ले रहा था। अपार्टमेंट के 2 बंदों से मैंने ये वीडियोस और तस्वीर ली हैं। अल्लाह करे इस लड़की को टेस्ट करने का जो तरीका आपने सोचा है हम इसमें कामयाब हो जाएं। रुमान की बात पर इसने बेख्तियार आमीन कहा। मैं 2 दिन पहले ही मीडिया के एक बंदे से इस दिन बनने वाली वीडियो ले चुकी हूँ। इसके अलावा कार्ड, बटा और ब्रेसलेट भी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से ले लिया है। मैं चाहती हूँ हम ये वीडियो इकट्ठे बैठकर कहीं देखें और मिलकर ही इन वीडियो में ढूंढें। इसकी बात पर लहजा भर के लिए रुमान ने कुछ सोचा। अली की तरफ चलते हैं। इसका एक फ़्लैट है, वो अक्सर इस फ्लैट में गजान के साथ कंबाइन स्टडी करता था। ठीक है, आप अली से अभी बात कर लें। उसने हाँ में हाँ मिलाई। ओके कहते साथ ही रुमान ने अली को फ़ोन करके फ्लैट पर आने का कहा। चलें। वो दोनों तेज़ी से वहाँ निकले। कुछ देर बाद अली के फ्लैट पर वो मौजूद थे। रुमान कुछ दिन पहले ही अली को अपना और अबीशा का प्लान बता चुका था। अली ने भी अपनी तरफ से हर मुमकिन तरीके से इनकी मदद करने का वादा किया। कंपाउंड में इन तीनों की मुलाकात हो गई। 2nd फ्लोर पर बना खूबसूरत सा फ्लैट अली के ज़ेरे इस्तेमाल था। इसमें दाखिल होते ही कॉरिडोर की दीवार पर लटकी अली और गजान की तस्वीरें अबीशा को चलने में आगे बढ़ने नहीं दिया। उजली साफ मुस्कुराहट लिए वो शख्स अबीशा को अपने आसपास महसूस हुआ। एक गहरा सांस भरकर वो आगे बढ़ी। रुमान अली को तब तक सीडी के मुतल्लिक बता चुका था। अली ने फ़ौरन सीडी प्लेयर को लाउंज में मौजूद एलसीडी के साथ जोड़ा। सीडी दो। अली ने मुड़कर रुमान से वो सीडी ली जो अबीशा इसे पहले ही पकड़ा चुकी थी। दुपट्टा और ब्रेसलेट अबीशा के बैग में मौजूद था। वो सीडी भी जो इसने टीवी के इस चैनल से ली थी जिन्होंने इस दिन इनके वेलफेयर की कवरेज की थी। आधी से ज़्यादा वीडियोस देख चुके थे। बार बार कर तमाम लड़कियों के दुपट्टों को देखते मगर कहीं कोई ऐसी लड़की नजर आई जिसने वो दुपट्टा लिया हुआ था। अगर वो हमें ना मिली। एक क्लिप पर रोक कर अली ने अबीशा और रुमान की जानिब देखकर कहा, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अबीशा मायूसी की कोई बात सोचना भी नहीं चाहती थी। मुसलसल 3 घंटे हो चुके थे मगर किसी क्लिप में वो लड़की मौजूद नहीं थी। आप वाली सीडी लगा कर देखें, रुमान ने अबीशा से कहा। पहले इसको पूरा देख लें फिर वो लगाते हैं। अबीशा हार मानने को तैयार न थी। अली ने दोबारा से क्लिप चलाया। अभी 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि यकदम अबीशा चलाई, रोके यहीं पर। इसके कहते साथ ही अली की उंगलियों ने हरकत की और वीडियोस पॉज कर दी।
4 लड़कियों में घिरी वो मुस्कुराती हुई लड़की बशुबा वही थी। वही दुपट्टा और हाथ से बालों को दुरुस्त करते वही ब्रेसलेट इसने पहन रखा था जो इस वक्त अबीशा के सामने मौजूद टेबल पर पड़ा था। रुमान और अबीशा के चेहरों पर खुशी की एक चमक थी सिवाय अली के। शुक्र अल्लाह का। रुमान इसी लम्हे सजदे में गिर गया। 6 महीनों से वो लगातार लोगों से वीडियोस लेता रहा था और आज आखिरकार वो लड़की इन्हें मिल गई। माय गॉड, ये तो नताशा है। अली के मुंह से निकलने वाले अल्फाज इन दोनों को शिश्तर कर गए। क्या अली इस लड़की को जानता था? निताशा कौन? तुम जानते हो इसे? रुमान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बदकिस्मती से ये मेरी कज़न भी है और मेरे एक कज़न की मंगेतर भी। इसके इंकशाफ पर वो दोनों हक्का बक्का रह गए। तो क्या ये अब कहाँ है? कौन से डिपार्टमेंट की है? अबीशा ने ये पे दर पे सवाल किए। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की थी और हमारे साथ ही इसका फ़ाइनल ईयर भी ख़त्म हो गया था। सबका इरादा था कि इसके फ़ाइनल ईयर के बाद इसकी और मेरे कज़न की शादी हो जाएगी, मगर नताशा ने फ़िलहाल शादी करने से इनकार कर दिया। ओ मेरे खुदा, तो यही वजह थी इसके इनकार करने की। और हम ये समझते के रहे कि वो अभी शादी जैसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। मेरी चचा नताशा के अब्बू रिटायर कर्नल हैं और मेरी कज़न यानी नताशा का मंगेतर भी एयरफोर्स में है। अली ने तफसील से नताशा के बारे में बताया। मगर अब हम हकीकत कैसे जानेंगे? रुमान ने कहा। अली देखें, हमारा नताशा से मिलना, इसे इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और ये तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी कि आप इसे पहले से जानते हैं। मेरे जहन में आइडिया आया है। अली, मैं आपको नहीं कहती कि आप नताशा से पूछ कर करें, क्योंकि वो ये सब आपको कभी नहीं बताएगी। तो क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी फेलो की हैसियत से इसके घर जाऊं और इसे कन्वेंस करूं, इससे सच उगलवाऊं। और मेरा ख्याल है हमें ये करना पड़ेगा। इसने इन दोनों की जानिब देखकर तायीद चाही। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये परफेक्ट आइडिया है। रुमान ने अपनी राय दी। ठीक है, मैं आपको इसके घर तक ले जाऊंगा। अली ने मस्बत जवाब दिया। नहीं, आप लेकर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ मुझे एड्रेस बताएं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अली ने फ़ौरन एक पेपर पर इसे एड्रेस लिख दिया। शुक्रिया। रुमान, मुझे घर ड्रॉप कर दें। सोफ़े से उठते अबीशा ने रुमान को मुखातिब किया और अली अभी इस सब की भिन्नत भी किसी को ना पड़े। रुमान ने अली से हाथ मिलाते हुए अली को तनबीह की। डोंट वरी, नहीं पता चलेगा। उसने यकीन दहाने करवाई। कुछ देर बाद अबीशा रुमान के साथ गाड़ी में मौजूद थी। आज के दिन मुझे दो खुशखबरियाँ मिली हैं। रुमान की बात पर अबीशा ने उलझकर इसे देखा। दो? ये पढ़ें। अपने मोबाइल पर एक ईमेल खोलकर इसने अबीशा को मोबाइल थमाया। मेरे जान से प्यारे भाई रुमान, समझ नहीं आ रही कहाँ से क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं। 6 महीनों से जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सोचा था कभी तुम लोगों से रब्ता नहीं करूँगा, मगर 6 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं जब खुद से जंग ना की हो। और आज आखिरकार मैं जंग हार गया और तुम्हें ईमेल करने का सोचा। मैं नहीं जानता तुमने मुझे बेकसूर जाना या नहीं। अब मुझे इस सब से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे लगता है गजान कहीं मर गया है, जो तुम्हारा भाई था। एक अजनबी दोस्त समझ लेना। मैं कनाडा में हूँ और ज़िंदगी जी रहा हूँ। हमारे एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ दिन पहले मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे खुशकिस्मती से यहाँ जॉब मिल गई थी। अगर वो वाक़या ना होता तो मैं तुम सब की दुआएं लेकर यहाँ आता, मगर 6 माह पहले सब की बददुआओं के बाद मैं यहाँ खामोशी से आ गया, क्योंकि गुनाहगार के लिए दुआएं नहीं निकलती और ना ही कोई इनसे मोहब्बत वहाँ रखता है। तुम्हारी मम्मी, डैडी और बहन कैसे हैं? रुमान, मैं नहीं जानता कि तुमसे कभी राब्ता दोबारा करूँगा। हाँ, अगर दिल ने ऐसे मजबूर किया तो शायद कर लूँगा, मगर तुम घर वालों को मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। प्लीज़ मुझसे वादा करो। वैसे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अब इन्हें मुझसे गर्ज ही क्या है? मैं तो शायद इनके लिए मर चुका हूँ। खैर, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गजान। गजान की मेल पढ़ते अबीशा का चेहरा आंसुओं से तर था। रुमान को इसके आंसू देखकर हैरत नहीं हुई।
غزان کے لیے اس کا جنون دیکھ کر اسے اب حیرت نہیں ہوتی تھی۔ انسان نہیں مگر اللہ اپنے بندے کی خاموش اور بے لوث محبت سے واقف ہوتا ہے۔ عبیشہ تو نہ جان سکی، مگر غزان کی عبیشہ کے لیے خاموش محبت کو تو اللہ جانتا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ آپ کی نیک نیتی کا بدلہ نہ دے۔ عبیشہ کا غزان کے لیے تڑپنا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کے لیے یہ سب کرنا حقیقت میں غزان کی خاموش محبت کا جواب تھا۔ اور عبیشہ ابھی تو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ میرا جواب بھی پڑھ لیں، رومان نے ایک نظر آنسو صاف کرتی عبیشہ کو دیکھ کر کہا۔ عبیشہ نے رپلائی میل کھولی۔ غزان میری جان، تو آج سوچ نہیں سکتا کہ مجھے تیرے بارے میں جان کر کتنا سکون ملا ہے۔ میری تجھ سے درخواست ہے، میں کبھی تجھے واپس آنے پر فورس نہیں کروں گا، مگر رابطوں کو تو نے اب کبھی ختم نہیں کرنا۔ میں گھر میں کسی کو بھی تیرے بارے میں نہیں بتاؤں گا، مگر ہاں تو گناہ گار ہے یا بے گناہ؟ تو نے کہا تھا نا کہ اب وقت گواہی دے گا، تو بس خود کو ملول نہ کر، مورد الزام ٹھہرا۔ میں جانتا ہوں کہ تو کیسا ہے، بس تو وقت کا انتظار کر، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ جلد تجھے سرخرو کرے گا۔ اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تیرا دوست، تیرا بھائی رومان۔ رومان کی میل کے ایک ایک لفظ کے ساتھ عبیشہ دل میں آمین پڑھ رہی تھی۔ میل بند کر کے اس نے موبائل رومان کو واپس کیا۔ تو اسی لیے آج آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے رومان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، مجھے خود یہ میل پڑھ کر بہت تسلی ہوئی ہے، یہ جان کر غزان خیریت سے ہیں، اس نے سچے دل سے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ اسی لیے آپ کو یہ میل پڑھائی ہے، آپ کا تو حق بنتا ہے یہ سب جاننے کا۔ عبیشہ بری طرح چونکی۔ آخر میری طرح آپ بھی تو پریشان تھی غزان کے لیے، اور سب سے بڑی بات، اس کے لیے اتنا بڑا سٹیپ آپ نے لیا تو حق کا حق بنتا ہے۔ آپ اس کی اتنی بڑی ویل وشر ہیں، آپ کو جاننا چاہیے تھا۔ رومان نے فوراً بات سنبھالی۔ عبیشہ خاموش ہی رہی۔ ایک بات کہوں، آپ نہ کہا کریں، تم کہا کریں۔ اس کی انوکھی فرمائش پر عبیشہ نے تحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کو چھوٹے بننے کا شوق ہے، ویسے ہیں تو آپ مجھ سے چھوٹے ہی۔ چلے آج سے تمہیں تم کہوں گی۔ عبیشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مان لی۔ تھینکس میم۔ وہ کورنش بچا لایا۔ گاڑی کھڑی کر کے جوں ہی وہ اندر داخل ہوا، پریشان حال منا کو لاؤنج کے سامنے صوفے پر بیٹھے پایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ منا نے ہاتھوں پہ گرا سر اٹھا کر بے خیالی سے رومان کو دیکھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ممی 2 گھنٹے سے غزان کے کمرے میں ہیں، باہر آنے کا نام نہیں لے رہی اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ ڈیڈی شام میں بزنس میٹنگ کی وجہ سے کراچی گئے ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں خواب چھا رہے ہو۔ میں اکیلی کیا کروں؟ منا تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ سو جاؤ۔ منا کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر غزان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا وہ دکھ سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جو غزان کی تصویر تھامے سے بار بار چوم رہی تھی۔ کاش یہ پیار آپ اس وقت اسے دکھاتی جب اسے آپ کی ضرورت تھی۔ وہ کہے بنا رہ نہ سکا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ یوں سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں گم ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ اتنے دنوں میں وہ غزان کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی ممی کہ آپ نے اسے یوں بے اعتبار کر دیا؟ آج میں وہ وجہ جانے بغیر یہاں سے خود اٹھوں گا، نہ آپ کو یہاں سے اٹھنے دوں گا۔ ان کے سامنے 2 جانبوں بیٹھتے اس نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی برستی آنکھوں سے رومان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر آنسو صاف کر کے اٹھنے لگی کہ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھنے نہ دیا۔ نہیں ممی، مجھے بتائیں۔ وہی بوجھ ہلکا کرنے لگی ہوں۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا، کتنے مہینوں سے یہ بوجھ لیے پھر رہی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں۔ اس کے کندھے کو تسلی سے تھپتھپاتے اپنی جگہ سے وہ دوبارہ کھڑی ہوئی۔ ابھی لے کر آتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔
कुछ देर बाद एक बड़ा सा शापर थामे वापस आई। वापस इसी जगह बैठी उन्होंने वो शापर रुमान को थमाया। वो हैरत से शापर और इनके मुकाबले बैठकर वो शापर खोलने लगा जिसमें बेशुमार खतूत थे। एक खत खोला तो किसी का मोहब्बत भरा पैगाम था गजान के लिए। नज़र भेजने वाली मोहतरमा के नाम पर पड़ी तो बुरी तरह चौंका। आहिम में तुम्हारी अबीशा लिखा हुआ था। हर हाथ में जीने मरने की कस्में, इनकी मुलाकातें, इसे जवाब दिलाने का शुक्रिया। वो हैरत से एक एक हाथ पढ़ रहा था, चकरा कर रह गया। कुछ खतूत में इनकी मुलाकातों के हवाले से बेहद शर्मनाक गुफ्तगू भी की गई थी, जिसे पढ़कर रुमान का खून खोल गया और माँ के सामने शर्मिंदगी अलग हो रही थी। आखिरी लिफाफे में तो गजान और अबीशा की चंद तस्वीरें भी थी। न जाने कैसे इन्हें एडिट किया गया था। वो वाक़या होने से 2 माह पहले मुझे ये हदूद बिला नागा मिल रहे थे, मगर मैंने इन पर यकीन नहीं किया। मुझे गजान पर एतबार था, मैंने इससे कुछ पूछा भी नहीं। मगर फिर कुछ दिन बाद ये तस्वीरें मिली। फिर निदा की माँ की कार भी आई। इसने मुझे बताया कि गजान के पीछे कोई लड़की है। मैंने ये सब हाथ तुम्हारे डैडी से छुपा कर रखे कि अगर इनके हाथ लग जाते तो उन्होंने हम में से किसी को नहीं छोड़ना था। मैंने गजान से आहर पूछा था तो इसने कहा कि हाँ, अबीशा नामी लड़की की मैंने मदद की है। मैं तब भी खुद को धोखा देती रही, ये कहकर कि वो गर्ल सिमट नहीं जा सकता। मगर कोई भी ये खतूत पढ़कर बआसानी ये सोच सकता था कि गजान का इस लड़की के साथ कोई अफेयर है। कोई लड़की इतनी पागल है कि वो यूँ खुद को किसी के पीछे हवार करे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, अगर किसी को पसंद करता था तो वो एक बार मुझे बताता तो सही, मैं तुम्हारे डैडी जैसे तैसे करके गजान के लिए रास्ता हमार कर देती। अगर इसे ट्रिप किया गया है तो वो लड़की सबके सामने आकर क्यों नहीं बताती कि रुस्तम इसके साथ गलत नीयत रखे हुए था। ये सब बातें मुझे क्या किसी शक में मुब्तला कर सकती हैं? बस इतने दिनों का वो लावा जो खतूत की वजह से मेरे दिमाग में भरा था, वो इस रात फट पड़ा। मैंने तुम लोगों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इस बात से भी इनकार नहीं कि शैतान कभी भी हावी हो सकता है। रुमान, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? इनके इस्तफार पर वो खतूत के लिफाफे पर लगी स्टैम्प का जायज़ा लेने में मगन था। मुस्कुरा कर माँ को देखने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। पता है मम्मी, माँ को सादा लोग कभी नहीं होना चाहिए। ये जो स्टैम्प है यहीं के पोस्ट ऑफिस की है, और जिस लड़की ने इन खतूत गजान से मोहब्बत के दावे किए हैं वो अबीशा हरगिज़ नहीं है। अगर वापसी ऐसी होती तो बहुत से मौके थे इसके बाद जिन्हें वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके आज यहाँ घर में आती। और गजान इसे पसंद करता भी था तो इसने कभी अबीशा को तो क्या कभी किसी को भी अपनी एक तरफा मोहब्बत की भनक नहीं पड़ने दी। माँ की मोहब्बत तो बहुत पकीज़ा थी। इसमें कहीं कोई हवस का गुजर भी नहीं था। ये खतूत किसी ऐसे बंदे ने लिखे हैं जो गजान को तो जानता था, वो अबीशा को भी बहुत अच्छे से जानता था, और जहाँ तक मेरा शक है वो नीता के अलावा कोई नहीं। जबकि अबीशा के बारे में ज़किया आंटी ने आपके जहन में ये गिरह डाली। मम्मी, अगर हम शातिर नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई भी शातिर नहीं। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, और ये तस्वीर बड़ी महारत से एडिट की गई हैं। और ये तस्वीर हमारे स्पोर्ट डे की है जिसमें अली गजान के हमरा खड़ा था। मैं आपको ये असल तस्वीर लाकर दिखाऊंगा। मम्मी, अबीशा को बहुत जल्द आपसे मिलवाने लाऊंगा। वो वैसे बिल्कुल नहीं जैसे इन खतूत ने इसे आपके सामने जाहिर किया है। मिलेंगे तो जान जाएंगी कि आपके बेटे की पसंद कितनी पाक है थी। मम्मी, अगर अबीशा ने यूं गजान को बदनाम करना होता तो पिछले 6 महीने से वो आपके बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए खुद ख्वार ना हो रही थी। मम्मी, वो तो फरिश्ता है हमारे लिए, और बहुत जल्द वो गजान को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाएगी। मम्मी, शायद इससे बेहतर लड़की गजान के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। रुमान की बातें सुनकर वो जितना हैरान होती इतना काम था। क्या मतलब, क्या कर रही है वो गजान के लिए? अभी नहीं, बहुत जल्द आपको सब बताऊंगा, और इन खतूत के पीछे कौन सा मकरूह चेहरा है वो भी जल्द बेनकाब करूंगा। शफक के माथे पर प्यार करते वो लिफाफा उठाए रुमान
کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد اگلے دن ایک دن پہلے یونیورسٹی میں اس نے اپیا کو کافی پریشان کیا۔ جب اپیا نے اسے منہ توڑ جواب دیا کہ وہ جیسے گھٹیا انسان سے دوستی